So we are discussing common objectives of capital restriction imposed by governments. That means capital restrictions. Government doesn't want the capital to go outside of your country. So government sometimes place restrictions on the flow of investment capital into their country and out of their country. मतलब आना भी नहीं है, जाना भी नहीं है पैसा. Inflow भी नहीं चाहिए, outflow भी नहीं चाहिए. So commonly cited objectives of capital flow restrictions include reduce the volatility of domestic asset prices. ये कल हमने डिस्कस किया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और थोड़ा शॉर्ट वे में भी अगर समझना है तो समझ सकते हैं. ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है. Objectives of capital restrictions. The main objectives of capital restrictions are to help maintain a balance of unstable exchange rates. That is a result of extreme volatile short-term capital flows. So developing countries have the need to make sure domestic savings support their investments. यानी जो भी लोग यहाँ पर सेविंग्स कर रहे हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सके इंस्टेड ऑफ अक्वायरिंग एसेट्स फ्रॉम फॉरेनर्स. यानी बाहर के लोग अगर हमारे पास आके पूरा एसेट्स अक्वायर करेंगे तो और कॉस्टली होता जाएगा, फिर हम अपना सेविंग से खरीद नहीं सकते हैं. करेक्ट? एम आई राइट? सो दिस इज डन टू रिस्ट्रिक्ट foreign control of domestic resources such as Canadian companies owning gold mines in African countries. Capital inflow brings competition with potential of forcing domestic companies out of the market. It is important for governments on some occasions to restrict capital inflow to boost the growth of domestic industries. Is this an important point and supporting the restriction? Correct or wrong? Hello? Yes. Yeah. Next. It is necessary to maintain the authorities' capability to tax income, wealth, and other financial activities. This is because taxes are crucial source of government revenues in cases where nations have huge market securities. So capital restrictions, मतलब हमारे यहाँ पर जो like maintain, it is necessary to maintain the authorities' capability to income tax, wealth and other financial activities. यहीं पर अगर इन्वेस्ट होगा तो यहीं पर ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस भी गवर्नमेंट को आएगा. करेक्ट? अगर यहां से पैसा बाहर जाएगा तो व्हाट विल हैपन? हेलो? हेलो? यस सर. यस सर. अगर पैसा इंडिया से बाहर जाता है तो बाहर इन्वेस्ट करते हैं, वहां का रेजिडेंशियल स्टेटस आता है तो टैक्सेस वहीं पे करना पड़ेगा, तो हमारे गवर्नमेंट को लॉस होता ना. जी सर. रेवेन्यू कम मिलेगा उनको. रेवेन्यू कम आएगा, फिर वो लोग भी डेवलप नहीं कर सकते, री इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते नाउ. और फिर इंडिया में भी बहुत सारा गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज भी है जो इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए है, वो भी कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा. गवर्नमेंट को उससे भी फंड्स आता है सिक्योरिटी को बेचने से, नहीं तो गवर्नमेंट को कहां से फंड्स मिलेगा. Now, Yes, capital sir. restrictions are also used to control the type of capital influx. Controlling the short-term flow of financial transaction, example, imposing taxes on short-term financial transactions is usually used as method of restricting short-term money flow. मतलब हमको रिस्ट्रिक्शन करना है बस, पैसा मतलब बाहर से आ रहा है तो उन लोग को ज्यादा टैक्सेस लगाना, तो जिससे वो लोग हमारे पास नहीं आए. सी गवर्नमेंट परमानेंटली नहीं करता, ये जब नीड है तभी करता है. ओके. When not limited, it can lend to a sharp change in reserves of foreign exchange or even contribute. जब जरूरत है टैक्सेस ईज कर दो, फॉरेन रिजर्व्स भी आएगा इंडिया में. Capital controls preserve the authorities' capability to take domestic financial activities such as income. They keep capital flows from interrupting stabilization and structural reform programs. ठीक है, ये हम लोग को शॉर्टकट में समझ में आ गया. एक बार छोटा मोटा रीडिंग मार के हमारा भी टॉपिक वाइंड अप कर लेते हैं. तो reduce the volatility of domestic asset prices. In times of macroeconomic crisis, capital flows out of the country can drive down asset prices drastically. पूरा पैसा इंडिया से बाहर जाएगा तो इंडिया के एसेट्स का वैल्यू कम हो जाएगा, तो ये एसेट्स का वैल्यू हमारे स्टॉक्स और बॉन्ड्स पे दिखेगा, उससे मार्केट क्रैश होगा. फॉरेन कंट्रीज को फायदा होगा, हमारे कंट्री को नुकसान होगा. ठीक है ना? रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो रिस्ट्रिक्शन लगाए तो क्या होगा, बहुत सारा पैसा हमारे इन्वेस्टमेंट्स में लगेगा, उसका डिमांड बढ़ेगा. The asset markets of countries with economies that are small relative to amount of foreign investment can be quite volatile over a country's economic cycle. So restrictions नहीं होगा capital inflows में, outflows में of foreign investment capital,
the asset markets of countries with economies that are small relative to amount of foreign investment, मतलब छोटा छोटा कंट्रीज है, can be quite volatile, मतलब एसेट प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करेंगे। तो एक अच्छा पॉलिसी लगा के उसको रिस्ट्रिक्ट करने से पूरा पैसा कंट्री के अंदर ही रोटेट होगा और डेवलप होगा हमारा इकोनॉमी। मेंटेन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स फॉर कंट्रीज विद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट टारगेट्स, लिमिटिंग फ्लोज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैपिटल मेक्स इट इजियर टू मीट द एक्सचेंज रेट टारगेट। मतलब अगर एक्सचेंज रेट फिक्स रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इंडिया का करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, तो यूएस वाले क्या करेंगे, बहुत ज्यादा पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, करेक्ट, और अच्छा रिटर्न्स लेके यूएस चले जाएंगे। ठीक है, हमको टैक्सेस मिलेगा, लेकिन वो लोग काफी रिटर्न्स, काफी बेनिफिट्स लाइक व्हाट वी से इंडिया से कमा के अपने कंट्री में लेके जाएंगे, हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर एक्सचेंज रेट फिक्स रखने से, रुपी और डॉलर को एक फिक्स रेट में रखने से, मतलब इतने डॉलर को इतना रुपी हम फिक्स कर दिए, वी फिक्स्ड इट, ऐसा है, दिस इज कॉल्ड पेग्ड, इसको बोलते हैं पेगिंग। मतलब सऊदी का जो करेंसी है और यूएस का डॉलर है, ये दोनों भी पेग्ड है, मतलब बिल्कुल भी अगर मतलब करेंसी का वोलेटिलिटी नहीं है। सऊदी का करेंसी मतलब अप्रिशिएट डिप्रिशिएट होने का रीजन कुछ भी नहीं है, दोनों फिक्स है। उससे क्या होगा, हमारे डोमेस्टिक लाइक इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि अगर अगर रुपी अगर बहुत डिक्लाइन हो रहा है, तो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी बहुत फायदा है, उन लोग के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा, करेक्ट। मतलब कई बार ये अच्छा भी है, बढ़ भी जाएगा, लेकिन अगर ज्यादातर मतलब हमारे कंट्री में एक्सचेंज मतलब जितना रुपी डिप भी होगा, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत इजी भी हो जाएगा, ठीक है। इनफ्लो भी आ सकता है, हमको रिस्ट्रिक्ट करना है, इनफ्लो को भी रिस्ट्रिक्ट करना है, आउटफ्लो को भी रिस्ट्रिक्ट करना है, ओके। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स रख देंगे तो डॉलर में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे इंडियंस, दे विल इन्वेस्ट रादर इन रुपी, करेक्ट और रॉन्ग? हेलो, यस सर, लिसन। द एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स, ना तो डॉलर हमारे लिए ज्यादा कम हो रहा है, ना रुपी डॉलर के लिए ज्यादा कम हो रहा है, तो फिर हम डॉलर यूएस में क्यों इन्वेस्ट करें, हम इंडिया में इन्वेस्ट कर लेंगे, दैट्स इट। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, प्लीज ध्यान से समझो। So fixed exchange rate system advantages and disadvantages, elimination of uncertainty and risk, मतलब हमारा करेंसी वो करेंसी ज्यादा कम होने का चांसेस खत्म, स्पेकुलेशन डिटर्ड, यानी कोई स्पेकुलेशन नहीं है, अरे वहां पर कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा अपन उसका फायदा उठाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, कोई डिप्रिसिएशन नहीं होगा, मतलब भाई अगर एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देंगे तो दोनों भी कंट्री एक दूसरे का अनवांटेड फायदा नहीं उठा सकती है कि अरे वहां पर कम है एक्सचेंज रेट, तो हम वहां जाके अच्छा इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। हम वो करंट मतलब इंडिया में अगर आके यूएस वाला अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि रुपी बहुत कम है यूएस डॉलर के मुकाबले में, बट फिक्स कर देंगे तो वो वैसा फायदा नहीं उठा सकता। कीप डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स लो, डोमेस्टिक इंटरेस्ट मतलब बाय रिस्ट्रिक्टिंग द आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे कंट्री से पैसा बाहर नहीं जाना। Countries can keep their domestic interest rates low and manage the domestic economy with monetary policy, as investors cannot pursue higher rates in foreign countries। मतलब क्या हो रहा है कि हमारे कंट्री से पैसा बाहर नहीं जाने दे रहे हम लोग, और बाहर से भी पैसा इंडिया में नहीं आने दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स को लो रख रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स को लो रखने से बाहर वाले तो आके इन्वेस्ट करेंगे नहीं। सी, वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट द इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो बॉस। एक तो हम लोगों ने हमारे कंट्री से पैसा बाहर जाने को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यहां से पैसा बाहर नहीं जा सकता, और इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। इंटरेस्ट रेट को कम करने से इनफ्लो वैसे भी डिटर हो गया, यानी इसको वैसे भी हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दिए। क्यों? पीपल विल डेफिनेटली इन्वेस्ट इन इंडिया ओनली इफ द इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, करेक्ट और रॉन्ग, व्हेन कंपेयर टू देयर कंट्री? Yes. Yes sir. If the interest rates in India are like low, they would not invest in India. तो और इंडियंस को भी बाहर पैसा निकालने से हम लोग रोक रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, यू कैन नॉट इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया, उन लोग को इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो फिर थोड़े दिन के बाद हमारा इंटरेस्ट रेट ऊपर भी हो जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगा। अच्छा, और इंटरेस्ट रेट लो रखने से हमको क्या फायदा है?
सब कुछ चीपर मिलेगा हमारे को, लेंडिंग चीपर हो जाएगा। अब जैसे इंटरेस्ट रेट्स लो है, हाउसिंग लोन बहुत इजी, बहुत चीप हो गया, यू कैन टेक ए हाउसिंग लोन एट 6.70% राइट नाउ। उससे क्या हो जाता है, हमारे लोगों को फायदा है, हाउसिंग लोन बढ़ेगा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अच्छा फायदा होगा, कमर्शियल इंडस्ट्री को अच्छा फायदा होगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज कनेक्टेड, सीमेंट एंड ऑल आर कनेक्टेड, सबको फायदा होगा, दैट्स व्हाट। एंड हमारे डोमेस्टिक लोगों के लिए फायदा है। प्रोटेक्ट स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट समटाइम्स प्रोहिबिट इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एंटिटीज इन इंडस्ट्रीज कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो बाहर के लोगों को आने से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशंस एंड डिफेंस। अब टेस्ला वाला तो चल रहा है इंडिया में, आएगा आएगा, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जियो है, जियो विल नॉट अलाउ देम बिकॉज जियो इज रूलिंग कंट्री। So describe the balance of payments accounts including their components. What is balance of payments? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। ओके, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है Surplus. तो सरप्लस, अगर एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है तो डेफिसिट। Deficit. Now, when a country's foreign individuals pay for their purchases of foreign goods, services and financial assets, they must buy the currencies in the foreign countries. अगर आपको बाहर का कुछ परचेज करना है, यूएस से कुछ इंपोर्ट करवाना है या कुछ भी है, तो आपको यूएस डॉलर परचेज करना पड़ेगा, यूएस डॉलर का डिमांड ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट, in order to accomplish those transactions. Similarly, payment for sale of goods, services and financial assets to foreigners require them to purchase the currency of domestic country. अगर यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को इंडिया में कुछ खरीदना है तो they need to purchase rupee. With adjustment for changes in foreign debt to domestic country and domestic debt to foreign countries, these amounts must balance each other. With adjustment for changes in foreign debt, मतलब हमारा फॉरेन में कुछ पेमेंट है, पेएबल है, ठीक है ना, और वहां का कुछ, वहां से कुछ हमको आना है, रिसीवेबल है। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ, इंस्टीट्यूट में। क्यों, क्या हुआ? अच्छा ठीक, ठीक है ठीक है, छोड़ दो, मैं बाद में बात कर रहा हूँ, मैं क्लास में। ओके। तो क्या होता है विद एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन फॉरेन डेट, मतलब हमको पैसा बाहर से भी आ रहा है, हमको भी देने का है, ठीक है ना, विद एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन फॉरेन डेट टू डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है ना, हमको जो पैसा आना है, एंड डोमेस्टिक डेट टू फॉरेन कंट्रीज, यानी वी हैव अ रिसीवेबल, वी हैव अ पेएबल, एंड दिस टू विल ऑफसेट ईच अदर, करेक्ट, ये एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को। भाई मेरे को $1 मिलियन का रिसीवेबल है, $1 मिलियन का पेएबल है, तो ये एडजस्ट हो जाएगा ना। Yes, sir. Yeah. Now, according to the US Fed Reserve, the balance of payment includes the current account, which mainly measures the flows of goods and services. The capital account, which consists of capital transfers and the acquisition and disposal of non-produced, non-financial assets, मतलब जो land, buildings, ये सब जो खरीदते हैं, and the financial account, which records the investment flows. तो यूएस फेडरल रिजर्व के हिसाब से बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या आता है, करंट अकाउंट आता है, जिसमें आप जो भी सेल परचेज करते हैं ये सब इसमें मेंटेन होता है, ओके, एंड कैपिटल अकाउंट होता है, करंट अकाउंट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग, यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल अकाउंट इज रिलेटेड टू like capital, what we say in like transfer to India, मतलब या तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर मतलब अक्वायर करेंगे और यहाँ से पैसा लेके जाएंगे, या तो ठीक है, एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन प्रोड्यूस, मतलब डिस्पोजल ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड, नॉन फाइनेंशियल, मतलब जो भी, अगर आप यहाँ पर इंडिया में अगर इंडिया से डील करते हैं, तो यहाँ पर अगर कोई लैंड एक्वायर करते हैं या यहाँ पर लैंड को बेच देते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और फाइनेंशियल अकाउंट भी होता है, इन दैट दे रिकॉर्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट्स डन इन इंडिया एंड रिटर्न्स व्हाट दे गेट फ्रॉम इंडिया। मतलब एग्जांपल, मतलब उनके कंट्री में भी होता है,
हमारे कंट्री में भी कर रहे हैं तो वो सब भी वो लोग देखते हैं, ठीक है ना। सो यूएस फेडरल रिजर्व में ये हमारा बीओपी होता है, करंट अकाउंट, व्हाट वी से, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ओके ओके, ड्राइंग ऑन द न्यूयॉर्क फेड्स एक्सप्लेनेशन, the items recorded in each account are as follows. करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं आप? मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज। मैं वही बोला आपको, जो भी आप बाइंग एंड सेलिंग करते, ट्रेडिंग करते, मर्चेंडाइज कंसिस्ट ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बॉट, सोल्ड और गिवन अवे। सर्विसेज इंक्लूड टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस, इमर्जिंग सर्विसेज, फीस वगैरह, जो भी पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, न्यू टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, बुक्स एंड मूवीज, ये सब आता है। इनकम रिसीट्स इंक्लूड फॉरेन इनकम, क्योंकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट से डील कर रहे हैं बॉस। तो मैं आपको यही बताया कि बाहर से आपको कुछ पैसा आ रहा है या यहाँ से आपका कुछ पैसा जा रहा है या उधर से कुछ आ रहा है, कुछ भी है, आपको वो सब करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। सो इंक्लूड फॉरेन इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स ऑन स्टॉक होल्डिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन डेट सिक्योरिटीज। मतलब इफ यूनाइटेड स्टेट्स कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन इंडियन स्टॉक्स, they would get dividend, and if they have invested in government bonds, they'll get interest. Unilateral transfers are one-way transfers of assets, such as money received from those working abroad and direct foreign aid. In case of foreign aid and gifts, the capital account of the donor nation is debited. Okay, तो ये होता है आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। मतलब आपको एक ही तरफ से पैसा आ रहा है, या तो इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट और एड या गिफ्ट। जैसे इंडिया हैज गिफ्टेड वैक्सीन टू मेनी कंट्रीज, करेक्ट। तो द कैपिटल अकाउंट ऑफ द डोनर, इंडिया का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे वो लोग। डेबिट मतलब इंडिया के लिए वो एक्सपेंस है, करेक्ट। आर यू फॉलोइंग? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कंप्राइजेस टू सब अकाउंट्स। एक तो कैपिटल ट्रांसफर्स इंक्लूड डेट फॉरगिवनेस and goods and financial assets that migrants bring when they come to a country or take with them when they leave, ठीक है। डेट फॉरगिवनेस मतलब जो भी डेट है उनका माफ कर दिया होगा, फॉर एग्जांपल माफ कर दिए। कभी गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारा डेट्स माफ कर देती है, मतलब इलेक्शन में कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो रहता है। एंड गुड्स एंड फाइनेंशियल एसेट्स दैट माइग्रेंट्स ब्रिंग, जो बाहर के लोग यूएस में आते हैं फॉर एग्जांपल, when they come to a country, or take with them when they leave. Capital transfers also include the transfer of title to fixed assets and of funds linked to the purchase or sale of fixed assets. Gift, inheritance taxes, death duties and uninsured damage to fixed assets, ये सब भी आता है। कैपिटल ट्रांसफर में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब आप किसी से कुछ खरीद लिए, ओके, तो उसका कैपिटल एसेट था वो आपके पास आ गया, ओके। सो इज दिस नथिंग बट टाइटल ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, करेक्ट। एंड फंड्स आल्सो यू हैव पेड सम मनी टू देम फॉर द परचेज ऑफ दिस, एंड आल्सो सम गिफ्ट इफ गिवन टू समवन, सम एसेट यू आर गिफ्टिंग। इंडिया में बहुत रिच लोग हैं भाई, वो यूएस में किसी को भी एक हॉलीवुड के पास कोई प्लॉट गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो। इनहेरिटेंस टैक्सेस, आपको कुछ इनहेरिटेंस आया प्रॉपर्टी का, मतलब आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आया, उसका भी टैक्सेस पे करना है। डेथ ड्यूटीज एंड अनइंश्योर्ड डैमेज टू फिक्स्ड एसेट्स। सेल्स एंड परचेज ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, अगर आप वहां करते हैं, दैट आर नॉट प्रोड्यूस्ड एसेट्स, इंक्लूड राइट्स टू नेचुरल रिसोर्सेस and intangible assets such as patents, copyrights, trademarks, franchises and leases. So sale and purchase of non-financial assets, ऐसे assets जो आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, मतलब आपको नेचुरली अवेलेबल मिल रहा है, जैसे नेचुरल माइनिंग एंड एक्सेट्रा, एंड जो आप क्रिएट कर रहे हो, ओके, जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स। अगर आप किसी कंपनी का पेटेंट परचेज कर रहे हो तो वो आपका इस अकाउंट में आएगा, क्योंकि दिस अकाउंट, capital account, deals with your capital investments, correct or wrong? So purchasing a patent can be a capital expenditure because that patent you purchase before you start your activity, at the inception of your activity, correct? You're taking a lease, you're taking a franchise, so all these are capital expenditures, so they come under capital account. Financial account, are you following? Hello? Yes, sir. Following. Yeah. Financial account, the financial account comprises two sub accounts. Government owned assets abroad, यानी गवर्नमेंट के कोई एसेट्स बाहर हैं, जैसे गोल्ड, फॉरेन करेंसीज, फॉरेन सिक्योरिटीज, रिजर्व पोजीशन इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
जैसे हम अपना पैसा बैंक में डालते हैं, वैसे कंट्रीज या गवर्नमेंट्स अपना पैसा आईएमएफ में डालता है। क्रेडिट्स एंड अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, उसको कुछ पैसा बाहर से आने का है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एंड क्लेम्स अगेंस्ट फॉरेन बैंक्स, ये सब गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स उसके कंट्री में नहीं रह के बाहर है। फॉरेन ओन्ड एसेट्स इन द कंट्री, बाहर के लोगों का भी यहाँ पर एसेट्स होगा, फॉरेन ऑफिशियल एसेट्स एंड अदर फॉरेन एसेट्स इन द डोमेस्टिक कंट्री। These assets include direct domestic government and corporate securities that, मतलब वहां के लोगों ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये सब चीज का रिकॉर्ड्स हम लोग गवर्नमेंट के फाइनेंशियल अकाउंट में होगा एज पर दी यूनाइटेड स्टेट्स फेड रिजर्व। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये 3 अकाउंट्स आते हैं। तो ये सबका आप एट द एंड क्या करते हैं, नेट करते हैं, नेटिंग। यानी आप क्या करते हो, आप देखते हो कि आपके कंट्री का जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है ना, मतलब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो आपको सरप्लस है। आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मतलब रिटर्न्स वगैरह क्या आया आपको वहां से, ये भी आपका सरप्लस है, करेक्ट। अगर आपके एसेट्स ज्यादा है फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, और लायबिलिटीज कम है, तो ये भी आपका सरप्लस है, करेक्ट। सो a country that has imports valued more than its exports is said to have a current account deficit, which I said, while countries with more exports than imports are said to have current account surplus. तो यही है, ये करंट अकाउंट डील्स विद ट्रेड, सारा ट्रेडिंग इसी में देखना है अपन, बाइंग एंड सेलिंग। हम अगर ज्यादा सेल करते हैं तो सरप्लस, ज्यादा बाई करते हैं तो डेफिसिट। फॉर अ कंट्री विद ट्रेड डेफिसिट इट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय अ नेट सरप्लस इन द कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। मतलब अगर इसको डेफिसिट आया यूनाइटेड स्टेट्स को, तो उसको अगर कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है, यानी उसको कैपिटल अकाउंट में क्या क्या देखा हमने, व्हाट डिड वी सी इन कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल ट्रांसफर्स, अगर हमको कुछ पैसा बाहर से आया है, ठीक है ना, एंड माइग्रेंट्स हमारे पास बहुत सारा पैसा लेके आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी परचेजेस करते हैं बहुत ज्यादा एसेट्स को, तो पूरा पैसा गवर्नमेंट को आता है, तो उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू रहेगा, तो वो रेवेन्यू से हम इसका डेफिसिट को सेट ऑफ कर देंगे। एज ए रिजल्ट, investment analysts often think of all financing flows as a single capital account that combines items in the capital and financial accounts. Thinking in this way, any deficit in the current account may be made up by a surplus in the combined capital account. यानी combined capital account is nothing but capital account plus financial account. That is the excess of imports over exports must be offset by sales of assets and debts incurred to foreign entities. मतलब ये मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है, मतलब जो भी हमारा डेफिसिट हुआ है इंपोर्ट ज्यादा करने से और एक्सपोर्ट कम करने से, वी आर ऑफसेटिंग बाय सेल्स ऑफ एसेट्स एंड डेट इंकर्ड, मतलब हम ज्यादातर सेल्स जो फॉरेन कंट्रीज को बेचते हैं वहां से हमको पैसा आना होता है, उससे हम लोग इसको सेट ऑफ कर देंगे। करंट अकाउंट सरप्लस इज सिमिलरली ऑफसेट बाय परचेज ऑफ फॉरेन फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट्स। Explain how decisions by consumers, firms and governments affect the balance of payments. Okay, I think हम लोग अब एंडिंग में आ चुके हैं। तो decisions by consumers, firms and governments affect the balance of payments. The primary influences referred to here are on the current account deficit or surplus. If a country's net savings, both government savings and private savings, are less than the amount of investment in domestic capital, मतलब if the country's net savings, यानी आपके जो सेविंग्स है, यानी सारे के सारे एक्सपेंसेस सेट ऑफ करने के बाद जो आपके पास सरप्लस बचा है, चाहे गवर्नमेंट के पास चाहे प्राइवेट के पास, अगर वो सेविंग्स कम है देन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक कैपिटल, दिस इन्वेस्टमेंट मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय फॉरेन बोरोइंग। यानी अगर आपके पास जो पैसा कंट्री को चाहिए $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, और हमारे पास जितना भी सेविंग्स है वो है 0.8 मिलियन, तो 0.2 मिलियन हम फॉरेन कंट्री से बोरो कर सकते हैं, ठीक है ना। सो फॉरेन बोरोइंग रिजल्ट्स इन कैपिटल अकाउंट सरप्लस व्हिच मींस देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट। तो फॉरेन बोरोइंग का मतलब क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में तो ज्यादा पैसा आ गया हमारे पास, लेकिन हमारे को बोरोइंग्स क्रिएट हो गई, ठीक है ना। ट्रेड डेफिसिट हो सकता है क्योंकि हमने वहां से पैसा लिया है और हमें वो पैसा देना है नाउ।
Now we can write the relation between trade deficit, saving and domestic investment as x minus m is equal to, ये x क्या है आपका, इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, Exports minus imports. वही दिख रहा है क्योंकि ये डेफिसिट की बात कर रहे हैं. सो ट्रेड डेफिसिट की जो बात है यहाँ पर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कैन ऑल्सो बी टर्म दस आपका सेविंग्स और गवर्नमेंट का सेविंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट. ठीक है ना, मतलब आपके पास 1 लाख की सेविंग्स है, गवर्नमेंट के पास 4 लाख की सेविंग्स है, आप 5 लाख पूरा हो गया, इसमें से पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो किया गया वो किया गया है 4.5 लाख का. तो 0.5 जो भी आपका बच रहा है ये आपका डेफिसिट है. ठीक है ना, Surplus हो एक्सपोर्ट गया. माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस. एक सेकंड शिवा, Trade surplus हो गया ना वो. डोर ओपन कर दो, एक सेकंड. या इसका नंबर एक बार बात करना है. लोअर लेवल्स ऑफ प्राइवेट सेविंग, लार्जर गवर्नमेंट डेफिसिट्स एंड हाई रेट्स ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. अगर हमारे पास सेविंग्स कम है पब्लिक के पास, गवर्नमेंट के डेफिसिट ज्यादा है यानी इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है, मतलब गवर्नमेंट के पास भी पैसा नेगेटिव में चल रहा है, हाई रेट्स ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ऑल like tend to result in or increase a current account deficit. ठीक है ना, हाई रेट्स ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, हाँ ठीक है, यानी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो बचेगा क्या. सो द इंट्यूशन हियर इज दैट लो प्राइवेट or government savings in relation to private investment in domestic capital requires foreign investment in domestic capital. इसका मतलब क्या है, कम, अगर लो प्राइवेट यानी आपके पास प्राइवेट पब्लिक के पास सेविंग्स कम है या गवर्नमेंट के पास सेविंग्स कम है इन रिलेशन टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक कैपिटल कंट्री के अंदर, उससे हमारे को क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक कैपिटल. करेक्ट. अगर हमारे पास मनी कम है तो कहां से आएगा पैसा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. हेलो. जी सर. Yes. Yeah. So we can make a distinction, however, between a trade deficit resulting from high government or private consumption and one resulting from high private investment in capital. तो हम इसमें मतलब डिस्टिंक्शन कर सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट रिजल्टिंग फ्रॉम हाई गवर्नमेंट और प्राइवेट कंजम्पशन and one resulting from high private investment in capital. In the first case, borrowing from foreign countries to finance high consumption, okay, yeah, low savings increases the domestic country's liabilities without an increase to its future productive power. यानी बहुत सारा पैसा अगर बाहर से आ गया, बाहर से फाइनेंस हुआ और लाइक हाई कंजम्पशन यानी ऐसे एसेट्स है जिसमें बहुत ज्यादा पैसे का जरूरत है, तो इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा. ठीक है ना, और विदाउट एन इंक्रीज टू इट्स फ्यूचर प्रोडक्टिव पावर, यानी अचानक से बहुत जल्दी पैसा नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा पैसा हमको आने में उसके ऊपर, तो वी विल बी इन डेफिसिट. सेकंड केस, बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू फाइनेंस अ हाई लेवल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट in domestic capital, the added liability is accompanied by an increase in future productive power because of the investment in the capital. मतलब ठीक है, अगर मेरा फोन, एक सेकंड. सो ये जो आपको मैं जब से ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इसका कुछ पॉइंट्स आपको बता देना अच्छा है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट that is expected to produce income.
appreciate in value. ओके, और आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देना है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सो अगर एग्जांपल क्या हो सकता है इसमें, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब हो सकता है। दैट इज व्हाट इट इज हियर। तो अब क्या बोल रहा है वो कि इन द सेकंड केस बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू फाइनेंस अ हाई लेवल, बहुत ज्यादा बड़े बड़े एसेट्स खरीदना है, वो भी हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है ना, डॉलर्स में। दी एडेड लायबिलिटी इज अकम्पनीड, मतलब आपको लायबिलिटी क्रिएट हो गया बाय एन इंक्रीज इन फ्यूचर, मतलब आपको बाद में तो अच्छा खासा आपको मतलब रिटर्न्स आएगा, क्योंकि आपने वो पैसा किस में लगाया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, यानी लैंड, बिल्डिंग, ये सब लगाया हुआ है, जिसमें आपको अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे। ओके, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। Now what is this point here? What is meant by we make a distinction between a trade division from higher government or private consumption? Okay, higher public capital, high consumption, ठीक है। एनी डाउट्स यहाँ पर, कोई डाउट्स है, क्लियर है? हेलो, Jayant, व्हाट इज दिस प्राइवेट कंजम्पशन? व्हाट इज दिस प्राइवेट कंजम्पशन? Private Sir, anything consumption is that Jayant, you nothing buy but for your money own spent, yeah, use. what people spent on purchasing goods and services. Okay, Yes, personal goods and या services. पर्सन, यस। तो जितना ज्यादा पैसा कंजम्पशन में लगेगा उतना ही कंट्री को डेफिसिट होगा, जितना पैसा इन्वेस्टमेंट में जाएगा उतना ही कंट्री को फायदा होगा, मतलब उतना ही रिटर्न जनरेट होगा, दैट विल बी गुड फॉर द कंपनी। डेफिसिट कम होगा, जितना कंजम्पशन में जाएगा, बाहर से पैसा लाके खर्च करेंगे तो क्या होगा, हमारा डेफिसिट बढ़ेगा ना। Yes. बोरोइंग का नीड कब होता है, जब पैसा नहीं है, तो बोरोइंग का नीड क्रिएट हुआ, बोरो करे, बोरो करके क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं करके इनमें लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू मेक आवर अकाउंट्स लेसेंड और हम और डेफिसिट में जाएंगे। नाउ डिस्क्राइब फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट फैसिलिटेट ट्रेड। जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ क्या करते हैं ट्रेड फैसिलिटेट करने के लिए? सो आईएमएफ वगैरह ट्रेड को प्रमोट करते हैं, मॉनेटरी कोऑपरेशन, प्रमोटिंग मॉनेटरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, जहां भी आपको पैसे की जरूरत है तो पैसा प्रोवाइड करेंगे, फंडिंग देंगे। आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट सेट्स आउट द आईएमएफ मेन गोल, ये आईएमएफ का मेन गोल है पूरे वर्ल्ड में, मतलब उनका यही मोटिव से वो चल रहे हैं कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करे, यानी हर कंट्री एक दूसरे से मॉनिटरली या ट्रेड के थ्रू, मॉनेटरी एक्सचेंज के थ्रू जुड़ जाए, ठीक है। फैसिलिटेटिंग द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, प्रोमोटिंग एक्सचेंज स्टेबिलिटी, यानी मतलब एक करेंसी और दूसरा करेंसी है। नाउ बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स लॉट ऑफ गुड्स टू यूएस because Bangladesh exports are cheaper in United States market, and United States like manufacturers are kind of, उनका cloth या textile manufacturing industry पूरा बंद हो गया because of Bangladesh. Are they suffering or not? Because the exchange rate are very less for Bangladesh when compared to US. So इनको benefit है, इनको नहीं है, तो ये ऐसा नहीं होना। IMF is trying their level best to make things stable. Now assisting in the establishment of a multilateral system of payments, मतलब जो भी है, देखो पेमेंट का गेटवे आपका ट्रेड को बढ़ाता है, अगर पेमेंट का गेटवे नहीं है तो ट्रेड कहां से बढ़ेगा? तो ये लोग ये मतलब सिस्टम्स लेके आ रहे हैं कि पेमेंट्स इजीली हो जाए, मेकिंग रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेंबर्स एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिफिकल्टीज। तो जहां पर भी ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, जहां पर भी कंट्री को पैसा लाइक डेफिसिट में है, उसको लाइक पैसा उसके पास कम है, मतलब देखो आज आपका बिजनेस प्रॉफिट्स में होगा तो ही
आपको सरप्लस बचेगा, करेक्ट? व्हेन यू हैव सरप्लस you can invest and you can become more and more richer, but when you have deficit, that means when you are in losses, you are suffering and you need funding from some source. In the same way, अगर इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है तो इंडिया के पास, इंडिया का बिजनेस कम हो रहा है, लेस बिजनेस, so we require funds from other countries. So that मतलब we require funds from some organization. IMF is going to do that for you, they are going to assist you. सेम केस वर्ल्ड बैंक भी वही करेगा. ये वर्ल्ड बैंक के कॉम्पोजिशन के बारे में समझा रहा है, 5 मिनट का लेक्चर है, खत्म हो जाएगा. वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स आपको मालूम है कहाँ है? न्यूयॉर्क में है. वर्ल्ड बैंक इज अ वाइटल, मतलब दे गिव फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. अपना टीम को भी भेजते हैं, जहां जहां भी जरूरत है टेक्नोलॉजी का, वो सबका वो भी प्रमोट करवाते हैं. इनका मिशन है पॉवर्टी को फाइट करना विद passion and professionalism for lasting results, to help people keep themselves and their environment by providing resources, sharing knowledge, building capacity, forging like partnerships in public and private sectors. मतलब collaborate करवाना countries को, जहाँ need की जरूरत है वहाँ help करना. इसके 187 member countries हैं. International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association इनके subsidiaries हैं, ठीक है ना, जो पूरे countries में world like help करते हैं. इंडिया में डैम बनाना है, बड़े बड़े रोड्स है, टनल्स है, प्रोजेक्ट बनाना है, वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता है. ईच इंस्टीट्यूशन मतलब plays a different but collaborative role in advancing the vision of inclusive and sustainable globalization. The IBRD यानी जो International Bank for Reconstruction and Development aims to reduce poverty in middle class income and creditworthy poor countries, while IDF focuses on world's poorest countries जैसे African countries. ये IBRD ये एशियन कंट्रीज के ऊपर. टुगेदर वी प्रोवाइड इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट लोन्स, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट्स. इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट्स मतलब आपको जो भी हम बेनिफिट देंगे वो मतलब आप जो भी हमारे पास कुछ डिपॉजिट करते हो वगैरह करते हो, मतलब उस पर कोई भी तरीके से टैक्सेस वैक्सेस नहीं है. आप आराम से अपना पैसा भी हमारे पास लगाओ, कोई टेंशन नहीं है. एंड ग्रांट्स to developing countries for a wide array of purposes that include investments in education. अब इंडिया को कोई बड़ा कॉलेज को मतलब बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या कुछ तो भी खोलना है तो वहां से पैसा आ जाएगा. ओके, यस. एंड नेक्स्ट पॉइंट, यस, और मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, सबके लिए वर्ल्ड बैंक आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना. हेलो हेलो, यस, या. सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, this is the only international organization dealing with global rules of trade between nations. Its main function is to ensure that trade flows as smoothly, predictably and free as possible. यानी ये चाहते हैं कि फ्री ट्रेड हो, ओके. एंड ट्रेड फ्रिक्शन यानी कहीं भी कंट्रीज के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट्स हो तो इसको भी वो नॉर्मलाइज करते हैं. एंड ट्रेड पॉलिसीज मतलब दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करते हैं. At the heart of the system known as multilateral trading system are the World Trade Organization's agreements. अब ये जो था हमारा पुराना वर्ल्ड बैंक था, अब ये जो है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी बहुत मेंबर कंट्रीज है. ट्रेड होना कंट्रीज के बीच में, फ्री ट्रेड होना, बिना किसी बायस के, टैरिफ वैरिफ एक्स्ट्रा नहीं लगाना, दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे को कोलैबोरेट करना ट्रेड के लिए, कॉर्डियल रिलेशनशिप्स रखना और उनके बीच